اور آپ کا انداز ہوتا ہے حضرت آپ ہم سے بہتر ہیں. کیوں ہے بھیا؟ نماز آتی ہے آپ کو؟ نہیں آتی نا. اللہ کے یہاں کھڑا ہو کر جواب دینا پڑے گا. دے پائیں گے جواب آپ؟ زکات برابر نکالتے ہو آپ؟ نہیں نکالتے نا. روزہ آپ کو برابر آتا ہے؟ نہیں آتا نا. دولت ہے، حج کیا ہے کبھی آپ نے؟ نہیں کیا نا. آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی اور نوٹ کی ہوگی، یہ جو ہمارے مولانا ہیں نا، یہ جو ہمارے مدرس ہیں، یہ جو ہمارے طلبہ ہیں، اور یہ جو ہمارے مفتیان کرام ہیں، یہ لوگ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بولتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں، پریشان ہیں، کمزور ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، کوئی ایسا مشغلہ نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو پاورفل محسوس نہیں کرتے. ہمیشہ ہر وقت آپ نے ان کو اسی انداز میں دیکھا ہوگا، یعنی بالکل بھی ان کے اندر جو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، جو ایک ہمت طاقت ہوتی ہے، اور جیسے کہ انسان کو بولنا چاہیے کہ بھائی ہم پاورفل ہیں، ان کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی. آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو آئیے میں بتاتا ہوں کہ یہ جو علماء ہیں اور مدرس ہیں اور یہ خصوص بالخصوص مدرسے کے طلبہ ہیں، یہ بہت بڑے پاورفل ہیں. آپ کو ان کے پاورفل ہونے پر کچھ بھی شک نہیں کرنا چاہیے. ایک عام آدمی کے مقابلے میں، ایک کاروباری کے مقابلے میں، ایک بزنس مین کے مقابلے میں، یہ جو جماعت ہے نا، علماء کی جماعت، اور یہ جو طلبہ، مدرسین، مصنفین، مفتیان کرام، یہ جو جماعت ہے نا، یہ بڑی پاورفل جماعت ہے. آئیے ان کی میں خاص 4 باتیں آپ کو بتاتا ہوں. یہ 4 باتیں کرنا چھوڑ دیں، ان سے بڑا پاورفل دنیا میں کوئی نہیں ہے. میں یہ بالکل گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ کو. یہ 4 باتیں کرنا چھوڑ دیں بس، ان سے بڑا پاورفل دنیا میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. ان میں سب سے پہلی بات ہے، دیکھیے، عاجزی کرنا اچھی بات ہے. نمبر 1، عاجزی کرنا اچھی بات ہے، لیکن بلا وجہ کی عاجزی کرنا اچھی بات نہیں ہے. آپ عاجزی کریے، یہ ہماری مذہب اسلام کی خوبصورتی ہے کہ الحمدللہ بہت اچھے آپ ہیں اور آپ کے اندر عاجزی ہے، لیکن بلا وجہ کی عاجزی نہیں. اب بلا وجہ کی کیسی عاجزی ہوتی ہے؟ آپ نے بہت مرتبہ دیکھا ہوگا، جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، امام صاحب ہیں، مسجد کے صدر صاحب آ گئے، السلام علیکم حضرت، یوں بالکل کھڑے ہو گئے. سیکرٹری صاحب آ گئے، کیشیئر صاحب آ گئے، یوں بالکل کھڑے ہو گئے. کیوں کھڑے ہو بھیا؟ کیوں کھڑے ہو؟ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریے. جو آپ ہیں، جس پوزیشن پر آپ ہیں، اور سامنے والا جو ہے نا، وہ اس پوزیشن پر نہیں ہے. تو سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ عاجزی کریں. اچھی بات ہے عاجزی کرنا. کبھی اپنے لیبل والوں کے سامنے عاجزی کریے، کبھی چھوٹوں کے سامنے عاجزی کریے. تھوڑا سا پیسے والا آ گیا، ارے سیٹ صاحب. کوئی حاجی صاحب آ گئے، ارے حاجی صاحب. کوئی بزنس مین آ گئے، ارے بھائی صاحب. ارے کیسے ہیں آپ؟ تو سب سے پہلی بات اس پہ آپ توجہ کریے کہ عاجزی بلا وجہ کی مت کریے. اگر آپ یوں ہے نا، یوں بات کریے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریے آپ. تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ عاجزی کرنا اچھی بات ہے، لیکن بلا وجہ کی عاجزی کرنا اچھی بات نہیں ہے. یہ کہیں نہ کہیں تم کو کمزور کرتا ہے، تمہارے کانفیڈنس کو کمزور کرتا ہے، تمہارے اندر جو تمہاری قابلیت ٹھوس کر بھری ہوئی ہے اس کو کمزور کرتا ہے. اور یہی عاجزی تمہاری قابلیت کو باہر نہیں آنے دیتی. یہ سب سے نمبر 1 کی وجہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اگر میری ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہو نا، تو اس چیز کو آپ نوٹ کریے. عاجزی کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کریے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریے، لیکن کسی کے سامنے جھکنے کے لیے عاجزی مت کریے. اور اس طرح کی عاجزی کرنا اچھی بات بھی نہیں ہے،
वो आपको ज़ेबा नहीं देता, वो आपको शोभा नहीं देता। तो आजिज़ी करें, लेकिन बिला वजह की आजिज़ी ना करें, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें और तकब्बुर से बचें। देखिए कितनी अहम बात है। पता चला कि कॉन्फिडेंस अलग है और तकब्बुर अलग है। इसी कॉन्फिडेंस के ओवर होने की बुनियाद पर लोग क्या करते हैं, तकब्बुर के शिकार हो जाते हैं। और ये तकब्बुर के शिकार कौन होते हैं मालूम है आपको? ये तकब्बुर के जो शिकार होते हैं ना, ये बिजनेसमैन सबसे पहले तकब्बुर के शिकार होते हैं। गवर्नमेंट जॉब वाले ये सबसे पहले तकब्बुर के शिकार होते हैं। अच्छी किसी की 1,00,000 1,50,000 प्राइवेट जॉब है किसी बड़ी कंपनी में, सबसे पहले तकब्बुर के शिकार होते हैं। और बात करें किसी के पास ज्यादा जमीन है, कोई चौधरी है, तकब्बुर का शिकार हो जाता है। तो तकब्बुर से बचिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बताया है ना, वो यही कहा है कि आप घमंड और तकब्बुर अपने अंदर ना आने दें। लेकिन ये कहां कहा है कि अपने हौसले, अपनी इस्तिकामत, अपना कॉन्फिडेंस दूसरे के सामने आप बिल्कुल कम कर लीजिए। ये किसने कह दिया आपसे? अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए। सामने वाला अगर कोई भी हो, आप उसको एहसास कराइए, एहसास दिलाइए कि जो आप हैं वो सामने वाला नहीं है। जो आपके अंदर अल्लाह ने क्वालिटी दी है वो सामने वाले के अंदर नहीं है। तो ये एहसास कराना और अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना। और ये कॉन्फिडेंस कैसे पैदा होता है मालूम है आपको? तवक्कुल अल्लाह। आपकी आमदनी 10 रुपए हो या 100 रुपए हो या 1,000 रुपए हो या 1,00,000 2,00,000 रुपए हो, एक सी पोजीशन में रहिए आप, मुस्कुराते रहिए, चेहरे के तासुरात को बदलने मत दीजिए। अपनी एक कैफियत मुस्तकिल चेहरे की बनाकर रखिए ताकि सामने वाले को यह महसूस हो सके कि तुम लॉस में चल रहे हो या फायदे में। यह पता ना लगा सके सामने वाला। ऐसी बनावट, ऐसा चेहरा अपना रखिए। तो कुल मिलाकर अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करिए। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि तकब्बुर से, घमंड से अपने आप को बिल्कुल बचा कर रखिए। आइए तीसरी बात मैं आपको बताता हूं। आप गरीब हैं, ये बोलना छोड़ दीजिए। अल्लाह पाक ने आपको 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 खूबसूरत सी आंखें दी हैं, एक बेहतरीन चेहरा अता किया है, अशरफुल मखलूकात का ताज आपके सर पर पहनाया अल्लाह पाक ने। और आप पब्लिक के सामने कहते फिर रहे हैं, क्या करें हजरत, हम गरीब हैं, क्या करें, कोई जरिया नहीं है, क्या करें, कोई सहारा नहीं है। अरे भैया, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि सामने वाले को तो दुनिया कुछ सिक्के मिल गए दुनिया में, लेकिन आपकी तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों सामने वाले से बेहतर है। फिर आप क्यों कहते फिर रहे हो भाई हम गरीब हैं, गुजारा नहीं हो रहा है, पूरा नहीं पड़ रहा है, खर्चे बड़े मुनासिब करने पड़ते हैं, नहीं चल पा रहा है, क्यों कहते फिर रहे हैं आप लोगों से? देखिए अल्लाह पाक हर चीज से वाकिफ है, हर जर्रे कतरे से वाकिफ है। आप अपने आप को गरीब मत बताइए सामने वाले को। कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो, आप एक ही बात कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। घर में बीमार पड़ा हो, अल्हम्दुलिल्लाह। परेशानियां हो, अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार नहीं चल रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में पहुंच चुके हो, अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बुनल्लाहु व नीमल वकील, नीमल मौला व नीमल नसीर। आप ही बयान करते हो ना। जब तुम्हारे लिए तुम्हारा रब काफी है और आप इस बात को बयान करते हो, तो ये बयान किसके लिए करते हो? आप अपने लिए करते हो या दूसरों के लिए करते हो? अगर दूसरों के लिए बयान कर रहे हो तो फिर आपके लिए कौन सा बयान होगा? तो कभी भी याद रखिए, अपने आप को गरीब मत कहिए सामने वाले के सामने। आपकी जेब में फूटी कोड़ी है कि नहीं है ये आपको पता है। एक अच्छा अंदाज रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, बिला वजह की आजिज़ी से बचिए और अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को सामने लोगों के गरीब मत बताइए। ये 3 बातें हैं। और चौथी बात मैं आपके सामने अर्ज करता हूं।
अक्सर आपने देखा होगा लोग बोलते हैं, मैं यहां पर आज उलमा की बात कर रहा हूं, तलबा की बात कर रहा हूं, एक जुमला ये बोलते हैं कि आप हमसे बेहतर हैं। आप ये बोलना छोड़ दीजिए, आप हमसे बेहतर हैं, आप ये बोलना छोड़ दीजिए। क्यों भाई आप हमसे बेहतर? आपको नमाज आती है? नहीं आती। क्यों बेहतर हैं आप हमसे? एक आम आदमी के सामने आपके जुमले इस तरह के होते हैं कि आप हमसे बेहतर हैं। एक डॉक्टर आम आदमी के सामने नहीं बोलता कि आप डॉक्टर मुझसे बेहतर हैं। एक इंजीनियर सामने वाले के सामने नहीं बोलता कि मैं इंजीनियर होके आप मुझसे बेहतर हैं। एक प्रोफेसर नहीं बोलता कि आप मुझसे बेहतर हैं। एक अच्छी पोजीशन वाला बंदा दुनियावी एतबार से अगर मैं बात करूं, वो कभी नहीं बोलता, एक टीचर कभी नहीं बोलता कि आप मुझसे बेहतर हैं। आप उलमा होकर, मुफ्ती होकर, मुफस्सिर होकर, हाफिज व कारी होकर, आलिम होकर, मदरसे के तलबा होकर, और आपका अंदाज होता है हजरत आप हमसे बेहतर हैं। क्यों है भैया? नमाज आती है आपको? नहीं आती ना। अल्लाह के यहां खड़ा होकर जवाब देना पड़ेगा। दे पाएंगे जवाब आप? ज़कात बराबर निकालते हो आप? नहीं निकालते ना। रोजा आपको बराबर आता है? नहीं आता ना। दौलत है, हज किया है कभी आपने? नहीं किया ना। आपको मसाइले वुजू आते हैं? मसाइले गुस्ल आता है आपको? मसाइले नमाज जनाजा आती है आपको? कफन दफन का तरीका आता है आपको? कुरान पढ़ना आता है आपको? तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ना आता है आपको? नहीं आता ना। कैसे बेहतर हैं आप? ये बोलना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अल्लाह पाक ने आपको पोजीशन दी है, उस पोजीशन को बरकरार रखिए। अगर क्रिकेट टीम का कोई कप्तान होता है तो वो अपने आप को कप्तान ही बोलता है, वो ये नहीं कहता कि आप मुझसे बेहतर हो। कभी विकेट कीपर को नहीं बोलता कि आप मुझसे बेहतर हो, कभी बैट्समैन को नहीं बोलता कि आप मुझसे बेहतर हो। क्यों? उसकी काबिलियत को देखकर लोगों ने उसे क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया है, इसलिए कि वो सबसे बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आप सबसे बेहतर हो। अल्लाह खुद कह रहा है कि मुझसे डरने वाले अगर कोई हैं, मेरा खौफ खाने वाले अगर कोई हैं, मुझे इज्जत से नवाजने वाले अगर कोई हैं, तो कौन है वो? उलमा की जमात है। और आप लोगों के सामने आजिज़ी करते फिर रहे हो, आप लोगों के सामने अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो, आप अपने आप को गरीब बोलते फिरते रहते हो, आप अपने आप को आप हमसे बेहतर हो ये बोलते फिरते रहते हो। भैया आप इमाम हो ना, सर के ताज हो आप हाफिज हो ना, मैदान महशर में आपके वालिदैन के सर पर ताज सजाया जाएगा। क्यों है आपसे बेहतर दूसरे लोग? नहीं है ना। इन चीजों को बोलना बंद कर दीजिए। ये चार बातें ये आपके लिए हैं, स्पेशल उलमा के लिए। इन चार बातों को बोलना बंद कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल अपने अंदर अपनी क्वालिटी को चेक करिए, अपनी कॉन्फिडेंस को चेक करिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल अगर इन बातों पर आप अमल करेंगे ना, तो अल्लाह ने चाहा तो आप दुनिया में भी आपका सीना बुलंद रहेगा, आपका सर बुलंद रहेगा, और मरने के बाद अल्लाह की रिजा के लिए काम करिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मैदान महशर में भी आपका सीना और आपका सर बुलंद रहेगा। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते रहिए इंशाअल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी खैरियत से गुजारे और आखिरत भी आपके साथ खैर का मामला फरमाए।